So good afternoon to students. Good afternoon, sir. Yeah. So let us discuss the things. I think we have stopped. Just give a minute. I'm just sharing the screen for the practicals. And then we can start complete. At least I will complete this practical, and we can do the rest thing. Yeah. So let me share the screen. So have you solved this? Yes. Anyone? Have you checked out? What will be the answer for this? Anyone have calculated the value? No. Can you hear me, students? Yes. Proceed. Okay. Not calculated. Fine. So now you can now if you not calculate it, let's see the calculation part. Take down. This is plus. You have to go with C minus capital N. Substitute all the values like except BC. We don't have BC value. Everything we have 45, then 30. This is 45 plus BC plus 30 greater than equal to you have A, you have B. So what is your A? A is 50, B is 60 plus 50 minus 100. Get simplify. We'll get the value of BC. How much BC? Anyone? I hope everybody is doing calculation. Yes, Minus 15, sir. minus 15. Okay, so this is minus 15. Okay, go to second one and write down what is second condition. You see the second condition. Second condition. Let me see the second condition. C. This is the C one. AC BC minus AB. This is the second condition. You may go with any condition. It is not necessary you can go in order. Make sure that you can compute all. This was some condition. So we need to substitute the value. Take BC here and AB. A will be here. क्या मिलेगा? Just check whether you are getting BC will be greater than equal to 25. Just check it out.
Then we have third one, which is I may convert it in terms of like that, in terms of BC only. So BC will be lesser than equal to B plus AC minus AB. Just a minute. Next. Yeah. So BC will be lesser than equal to B plus AC minus AB. So if again substitute, you make ABC will be lesser than equal to 45. Just work on this. I have the answer directly, so you can just see whether you can able to get it. Similarly, for you can write. Oh, what's the problem is going on? It is not working properly. Just a minute. Let me see. And we have similarly last one also. The last one, which is BC less than equal to C plus AB minus AC. If you work on this, BC will be less than equal to 65. Just see if we're getting these answers or let me know in chat. Yes, sir. Check all four conditions and check whether you are getting the same answers or not. So finally, with the help of these four conditions, I may say that range for BC is going to be 25 is lesser than equal to BC lesser than equal to 65, because the value of BC can't, because we know 45 frequency. Sorry. 45. uh, I informed that BC could be less than 45. No? Shubham Pandey, mute yourself. Shubham Pandey, mute yourself. So the range for BC cannot be negative, right? So we cannot consider negative values, and therefore the minimum is 25 and maximum is 65. So range of BC will be always lies between 25 to 65. So this is our task. Sir, Yes, Abuli. BC should satisfy all these four conditions, right? Right. मतलब ये चारों तो सर लेस देन 45 आई थिंक होना चाहिए ना, बिकॉज अगर 65 से लेस देन किया तो थर्ड वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा.
क्यों इसके बीच में 45 नहीं आ रहा है क्या? 45 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन दिया है सर, BC शुड बी 45, लेस देन 45। अगर BC का वैल्यू 50 अगर इस हिसाब से ले सकते हैं ना सर, जो लास्ट आंसर दिया है। हाँ, you can take 50 also. They see basically they want the permissible range. लिमिट क्या है उसका? यस तो लिमिट तो 65 से छोटा ही है ना, तो वो तो कोई भी वैल्यू ले सकता है तुम्हारा। इट कैन 64, 63, 62, बट ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। पॉइंट। यस सर। तो अपने को ऐसा यस रेंज देना है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये सेटिस्फाई नहीं करे। लेस देन 65 मतलब लेस देन 45 मतलब क्या, ये लेस देन 65 करूंगा तो 45 उससे छोटा ही है ना आपका। हाँ मतलब वो रेंज, अगर मैं कोई ग्राफ बना के अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा पर्टिकुलर रेंज हो गया, ये रेंज मेरा लेस देन 65 का रेंज है, ठीक है, तो लेस देन 45 किधर रहेगा, किधर तो इधर रहेगा तुम्हारा, तो भी सेटिस्फाई करेगा ना तुम्हारा यस रेंज। अंदर। तो हाँ ऐसा वो ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है। यस ओके, so this is the question number, I think fifth one, fifth or sixth, Sixth one, sir. yeah, sixth one. Let us move to the next one, seventh one. Give me a minute, close. So this is the question number 7. So you can the solution of first one, solution of A. What could be solution? So what is the data given to us? We need to obtain what? We need to obtain the all positive frequencies given the ultimate class frequency. This is the frequency we have given. Find frequencies of positive classes. Means we need to obtain remaining frequency. I can say ultimate frequency, remaining frequency, but which is positive. Which is positive. तो कैसे निकालोगे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी? How did you get this positive frequency? Yes. तो इसमें ध्यान से देखोगे तो आपके पास ऑर्डर 3 का सब फ्रीक्वेंसीज दिया है, ऑर्डर 1 2 है क्या? नहीं है। तो मुझे ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव क्लासेस मतलब क्या? ऑल आर पॉजिटिव, all are present, all are present. That means we need to obtain for A. What could be formula for A? A का आंसर क्या होना चाहिए? So you are supposed to be right for A. You need to calculate A. तो A कैसे निकालोगे आप यहाँ पे?
So positive frequencies means A. Just a minute. A is equal to. So how do you get A? How do you add? How do you get A? So if you add A B C plus A B gamma plus A beta C. See how I'm writing the formula for this. And A beta gamma. कैसे लिखा फॉर्मूला देखो, कोई बता सकता है कैसे? सर हाँ बेटा बोलिए। जीसी पे ऐसा मतलब वैल्यूज वगैरह दिया नहीं है। जीसी पे वैल्यूज नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। हाँ तो क्या होता है कभी कभी ना, जब आप डाउनलोड करते हो ना बेटा, तो क्या वो सिंबल है ना आपका, दिस इज ऑल सिंबल्स, ए बी गामा ये सब सिंबल्स है, तो वो सिंबल्स वहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, तो डोंट वरी, यू कैन जस्ट टेक दिस सिंबल्स, यही आप ले लीजिए, ठीक है। सेम इशू में भी है, मतलब कि आपने जो टैबुलेशन और कंटिजेंसी टेबल का नोट शेयर किया ना, उसमें भी ऐसा नहीं दिखता है। पूरा वैल्यूज नहीं, ब्लैंक, पूरा ब्लैंक, पूरा ब्लैक दिख रहा है। ब्लैंक ब्लैंक खाली पेज दिख रहा है, सिर्फ ब्लैंक वाइट है वाइट। सर। सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वह डेटा फिल ही नहीं हुआ है ये। रिवीजन भी नहीं हो पा रहा मतलब। अच्छा, हम्म। क्योंकि ये जो फाइल मैं आपको जो स्क्रीन पे शेयर किया हूँ, ये वाला फाइल, यही फाइल मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ओके सर। सर तो ये इसका देखो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वैसे हाँ कर। स्क्रीनशॉट जिसका नहीं हो रहा है उसका Yes. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये सिंबल्स है ना, अदरवाइज अपलोड कर दो, क्लियर हो जाएगा। हाँ नहीं तो मैं लिंक ऑलरेडी शेयर किया हूँ इसका, यूट्यूब का, जो सिंबल्स आपको या फिर जो जिसका नहीं दिख रहा है, आप उधर से जाके वो यूट्यूब से जाके आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उधर। ओके बट आई थिंक इसका वर्ड का मैं समझ सकता हूँ, पीडीएफ फाइल का भी वैसा हो रहा है क्या? यस सर। पीडीएफ फाइल का ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ब्लैंक पेज है पूरा सर। कौन सा कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा और टेबुलेशन वो वाला बोल रहे हैं आप? नहीं सर, सिर्फ 7th का डेटा ब्लैंक है, उतना ही बोल रहा है वो। हाँ मतलब 7th का डेट का प्रॉब्लम, बाकी बाकी तो बाकी प्रॉब्लम नहीं कुछ है नहीं ना। है, बाकी सही है सर। हाँ मुझे लगा कोई बोल रहा था कि नोट्स भी मतलब नोट्स का भी हाँ सर नोट ऐसा वाला एग्जांपल का मतलब सोल्यूशन है, बाकी सबका नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन शो कर रहा है एंड बाकी आंसर तो अच्छा इधर कुछ अच्छा है ही नहीं अच्छा, उसमें। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और टेबुलेशन में, कैलकुलेशन बराबर है। टेबुलेशन बराबर है ना, ओके। हाँ सर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ से ए का वैल्यू, आपके पास सब है, सब डेटा आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपको समझ में आया? ए प्रेजेंस है ना, तो सब में ए ए आ गया। अभी ए के साथ में क्या प्रेजेंस होता है? बी सी, तो यहाँ से मैंने क्या किया, बी को एब्सेंस किया, यहाँ से मैंने बीटा को एब्सेंस किया, और लास्ट में बी सी को एब्सेंस किया, तो बीटा क्या। तो ऐसे आपको ए का फॉर्मूला बनाना है। व्हाट इज योर आंसर? इज एनीवन कैन टेल मी? Anyone can tell me the answer for this? Similarly, you can write for B. So this is the order one. This is the order one. You can go with order two. तो B का फॉर्मूला आप लिखो और B का आंसर बताओ। C का फॉर्मूला लिखो, C का आंसर बताओ। Let me know the answer for. Let me know the answer for A.
Let me know the answer for B. Let me know the answer for C. Yes, anyone calculated? क्या मिला एक आंसर? तुम्हारे पास वैल्यूज है इधर, सब्स्टिट्यूट करो ना. 2308 sir. हाँ, 2308. correct. How much time you are taking to calculate now? Only 4 number addition of only 4 numbers we required. इधर ABC है, सब कुछ डेटा आपको दिया है ऊपर वाले क्वेश्चंस में. कैलकुलेट फॉर सिमिलरली बी का क्या फॉर्मूला लिखोगे? ABC पहले आएगा, बी को प्रेजेंस रखना, इतने याद रखो आप, बाकी सबको चेंज करो. तो ए के बदले अल्फा आएगा, BC, फिर ए बी गैमा आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो लास्ट वन? अल्फा बी गैमा. ऐड करो चारों को, आंसर बोलो फटाफट. चलो, you need to just substitute the value. I'm just giving the answer, I'm giving the formula for this. So this is the first value which we have calculated. Please do not write as it is. You have to substitute the values, do the addition, and you may turns out the finally answer. Don't write as it is. Similarly, write down C का formula or and let me know the answer. Then you have to go to the order 2. ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 2 पे जाना पड़ेगा. तो ऑर्डर 2 के लिए ए बी निकालना पड़ेगा. तो ए बी का क्या फॉर्मूला होता है? फिर से सेम कंसेप्ट यूज करना है. ए बी सी प्लस ए बी गैमा और आंसर बोलने का. लेट मी नो द आंसर. सिमिलरली यू राइट डाउन बी सी का फॉर्मूला और बी सी का आंसर. सिमिलरली यू राइट डाउन ए सी का फॉर्मूला, ए सी का आंसर. See, these all practicals you have to do it your own, looking as all theory concepts. Then we have a capital N, which I am giving. So if you add all A, all B, total C, total AB, total AC, total BC, you may come, total number will be N. सर AB 887 है क्या? AB है 887, करेक्ट. बाकी रिमेनिंग BC निकाला? नहीं सर निकाल रहा हूँ सर. अच्छा, तो ये भी इजी था, ये भी निकाल लिया पहले, BC को छोड़ दिया. So just understand how you can create the formula. See, this is all there in your 3x3 contingency table. केवल आपको समझना है कि कैसे हमको क्या फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यूज करना है और कंसेप्ट यूज करके कैसे मेरे को वैल्यूज निकालना है. That is very very important. So I think somebody has given answer. So let me write down the answer for that. So this is 887. Somebody got the answer. Similarly, you can find BC. BC का आंसर मुझे बताओ, चलो फटाफट.
सर 353 रॉन्ग है क्या? 353 करेक्ट 353 करेक्ट। हाँ सर। BC का बताओ। एक मिनट सर बता रहा हूँ। You can see your n will be dependent on all above frequencies. तो अगर ऊपर का सब रॉन्ग रहेगा तो n भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट कि आपका वैल्यूज बराबर हो। AC सर 374 374 correct. Others, please check this answers is right or wrong. Don't rely on this calculation. You need to cross check your answers with the help of calculator. Yes. What about BC? I'm waiting for BC. 353. 353. Sorry, sir. हाँ B मतलब BC बराबर 353 बराबर है BC आपका, लेकिन एक्चुअली मेरे को B चाहिए और C चाहिए ऐसा। 2853. 2853 and C is 749. 2853 और C C है is 749. 749. करेक्ट। तो टोटल बता दीजिए चलो फटाफट, टोटल कितना आ रहा है, n कितना मिल रहा है? सर N है 7524 7524 correct. Now try to so your I think इतना ही मुझे निकालना है इसमें कि और कुछ निकालना है? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या पे? हाँ सर समझा। इतना ही निकालना है कि और कुछ निकालना है? All frequencies of positive class. Positive class मतलब क्या? जो सब प्रेजेंस है। तो प्रेजेंस क्या क्या है? A B C, A B A C B C और A B C. A B C ऑलरेडी दिया है मुझे, तो I have obtained all. अभी बोलता है मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकालना है, तो मुझे अल्फा बीटा गामा सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन में वैसा कुछ पूछ रहा है। फाइंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन इन द फॉलोइंग डेटा, मतलब मुझे इधर सब निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है लोग, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे अगर बोलते हैं कि पॉजिटिव निकालो या नेगेटिव निकालो तो अपने को उतना ही निकालना है, बट यहाँ पे क्या बोला? फाइंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको मालूम है कितना होता है, 27 इफ यू रिमेम्बर। आई विल शो यू अगेन दैट consistency of data. I think consistency में था tabulation में था किधर था? tabulation में। टोटल कितना फ्रीक्वेंसीज होता है यहाँ पे? 27 दिख रहा है। तो 27 फ्रीक्वेंसीज आपको टोटल निकालने पड़ेंगे।
इसमें से कितने फ्रीक्वेंसीज दिए हैं क्वेश्चंस में आप देख लो। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रीक्वेंसीज दिया है। तो रिमेनिंग कितने बच्चे आप सोच लो, उसके हिसाब से निकालो आप। तो कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन? तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, आपको जस्ट फॉर्मूला सर्च करना है, फॉर्मूले को देख के वर्कआउट करना है। अगर मैं बोलूँगा जो भी डेटा दिया है वो मुझे अल्फा निकालना है, तो मुझे क्या मालूम है, क्या जानता हूँ अल्फा के बारे में मैं, कि मेरा जो अल्फा होता है वो प्रेजेंस प्लस एब्सेंस इज इक्वल टू एन होता है। मुझे मालूम है अच्छी तरह से, तो अल्फा तो निकाल ही सकता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस ए। निकाल लो अल्फा। एन आपके पास है, ब्रैकेट ए आपके पास है, तो ए में अल्फा मिल जाएगा। सिमिलरली अल्फा मिल गया तो बीटा मिल जाएगा, सिमिलरली गामा मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। तो n माइनस ब्रैकेटेड ए, n माइनस ब्रैकेटेड बी, n माइनस ब्रैकेटेड सी, तो वैल्यूज मिल जाएगा फटाफट सब आपको। चलो आंसर बोलो फटाफट। सर अल्फा 5216 है। अल्फा 5216। चेक करो वापस से एक बार। ओके सर। n माइनस ब्रैकेटेड ए करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। हाँ, वी आर डूइंग फॉर बी, वी आर डूइंग फॉर बी, मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए। 20,095. करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये मिल रहा है मुझे, अल्फा मिल रहा है 22,095। जस्ट check it once again everybody. Similarly you can get b. b कैसे निकालोगे? n minus b, sorry beta will be n minus b। वो सिंपल कैलकुलेशन है। और गामा भी निकाल सकते हो, बोलो फटाफट। दो नंबर का डिफरेंस आपको लेना है। So this may be answer, just checked out। ये मिल रहा है कि दूसरा कुछ मिल रहा है? तो ये मेरा हो गया ऑर्डर 1, ये मेरा हो गया ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 निकालेंगे अभी। हाँ, ते भी खायला और खायला. तो ऑर्डर 2 में वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए बीटा। ए बीटा कैसे निकालोगे? अगर ए में से मैं ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए बीटा। सिमिलरली आई कैन फाइंड अल्फा बी, सिमिलरली आई कैन फाइंड अल्फा बीटा also। Similarly I can find alpha c, तो अल्फा बी का फॉर्मूला क्या होगा? b माइनस ए बी, अल्फा माइनस अल्फा बी, c माइनस ए सी। Just work on this। Now you can obtain
ए गैमा, फ्रीक्वेंसी 2 में बहुत है तो आपको बराबर सब बराबर काउंट करके ही करना है। ए गैमा, अल्फा गैमा, बीटा सी, सब पॉसिबिलिटीज निकालना पड़ेगा क्योंकि 9 फ्रीक्वेंसी मेरे पास है तो रिमेनिंग कितने निकालना आपको समझ में आ जाएगा। 18 फ्रीक्वेंसी, 18 फ्रीक्वेंसीज आपको निकालना। Let me know if you have any difficulty writing the formula. I will tell you the trick. You can use your trick. So this is order 2. Then we can go with order 3 also. So AB gamma का फॉर्मूला होगा, AB प्रेजेंस है तो AB में से हम लोग क्या करेंगे, ABC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली A बीटा C निकाल लो, सिमिलरली A बीटा गैमा निकाल लो, which is A बीटा माइनस A बीटा C। सिमिलरली अल्फा बीटा C निकाल लो, जो है BC माइनस A बीटा C। देखो अब क्या बचता है, अल्फा बीटा C और अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा C। Okay, so these are the things we can always take care. Let me know if you have any questions. So just calculate and let me know the answers for this. I hope everybody is doing calculation. I can see from here also, since I am not God, but still I can able to see. So make sure that you are doing calculations properly. Sejal is there. Sejal, you are doing working. Yes, sir. Okay. Shivam Mishra. Tell me all first order. Shivam Mishra, can you tell me all first order?
first means first we have written, I think. Tell me all second order if you have completed. Starting from A beta. Yes. Yes, Shivam. Shivam is there or not there? खुशबू तिवारी 21 29 Page 30. मम्मी को सिर पर बताइए कौन है? Just a minute, huh? Just a minute. I'm back. So, where is the answer? Yes, anyone can tell me on entire order to answer so that I can able to write it fast. Yes. हेलो सर Yes, बेटा बोलिए. सर ऑर्डर 2 का थर्ड वाला कैसे आया ऑर्डर 2 का थर्ड वाला कैसे आया? मतलब आप फॉर्मूला पूछ रहे हैं? यस सर फॉर्मूला ही पूछ रहा हूँ अच्छा, तो फॉर्मूला कैसा? अल्फा बीटा है ना? यस तो सर अल्फा बीटा में दोनों एब्सेंस है, लेकिन मेरे पास अल्फा का वैल्यू है, दिख रहा है? यस सर और हाँ मैंने अल्फा बी ऊपर निकाल लिया है. तो क्या किया मैंने अल्फा में से अल्फा बी निकाल दिया है, मुझे अल्फा बीटा मिल जाएगा. समझे क्या? यस सर तो क्या सर एक होता है? ऑर्डर 3 का हाँ, ऑर्डर 3 का आंसर सर कितना आ ऑर्डर रहा है? 3 का एक नहीं ऑर्डर 3 का सर एक बता दीजिए ना पहला वाला ऑर्डर 3 का पहला वाला. कैसे हाँ पहला अच्छा, या सर थर्ड वाला बता दीजिए कैसे है हाँ, इसमें नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है देखो. अगर आप ए बी गैमा देखते हो तो प्रेजेंस क्या है इसमें? ए बी प्रेजेंस, राइट? तो ए बी में से आपको ए बी से निकालेंगे तो आपको ए बीटा गैमा ए बी गैमा मिल जाएगा. ए बी बड़ा फ्रीक्वेंसी है,
और ABC छोटा फ्रीक्वेंसी है, तो AB सब्ट्रैक्ट करेंगे ABC में से तो आपको AB गामा मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर A बीटा C। AC में से ABC निकालोगे तो आपको A बीटा गामा मिल जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे A बीटा गामा दो एब्सेंस है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं A बीटा में से A बीटा C को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब A बीटा C मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हूँ, तो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड, मतलब ये वाला इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये रॉन्ग है तो ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा सी है, सॉरी अल्फा बीटा सी है, तो अल्फा बीटा सी में इज दैट बीटा सी और इज दैट बीटा सी, सॉरी ये बीटा सी है। तो अल्फा बीटा सी मुझे निकालना है, तो बीटा सी में से मैं अल्फा बीटा सी को निकाल दूं, ए बीटा सी को सब्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, तो मेरे पास जो एग्जिस्ट है उसमें से मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना, समझे? तो ऐसे करके आपको फॉर्मूलेस बनाने पड़ेंगे। यस सर। Yes, anyone can tell me answers or not calculated? You're waiting for me to write down. Anyone from girl A- side? A beta is equals to A beta equals to 1031. okay 1031. Alpha B is equals to Alpha B equal to 1428. 1428. Alpha beta is equals to 20667. 2667. Next one. Alpha C is equals to 342. 342. Okay. Alpha A gamma is equals to 1190. 1190. Alpha gamma is equals to 21753. 2753. Beta C is equals to Plus is equal to 435. 435. And Beta gamma is equals to 1680. beta gamma is equal to 1680. this is beta gamma ना। अच्छा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? B minus BC. गड़बड़ है थोड़ा सा, दिस विल बी आई थिंक बीटा। बीटा गैमा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा सी ना। या बीटा माइनस बीटा सी, बीटा माइनस बी सी और बीटा सी, करेक्ट, बीटा सी, बीटा माइनस बीटा सी, तो बीटा सी वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, राइट। So you have beta with you, which is 21698 minus beta c, which is 435. How much? 21263. 21263. Okay, very good, Shraddha. And let's complete order 3 fast. Yes, anyone tell me order 3? Sir has joined.
Sir has joined. Okay. So you finish this remaining part. Okay. I will. You may just take down the answers for this. You can verify at least these answers, and the more thing you can discuss in the next session. Okay. So just take down these answers, and let me know if you have any corrections in these answers. Please do the calculation. It's mandatory to all. 20504, and let me know the whether in case if any correction is there, we can make it. So see you in the next class, maybe after this session, and then we can go ahead with the next task. Yeah, Sanket sir, can you hear me? Sanket sir? Sanket sir has joined. Hello. Yeah. Hello. I'm Yeah. taking it today. Hello, Mary madam. Yeah. Okay, okay. Yeah, ma'am. So I already make you the host, I think. So I'm just leaving. Uh, Thank you, sir. Yeah.